फिर म्यूट करो। Good evening, everyone. Hope you guys are doing good in this fine Sunday evening. We will have our guest joining us very shortly. Meanwhile, I thought to have a candid conversation with you all. Yeah, just all right. So we are all set. Good evening, Anurag, Pooja, Divakar, Akhilesh, Technical Institute, Abhinanandan, Saurav Singh Segar, and others who have not yet posted a comment but still online with us. आज का हमारा सेशन टुडे इज द लास्ट संडे, लास्ट सुपर संडे ऑफ स्टार्टअप पाठशाला, एंड विल कंटिन्यू विद अदर सेशंस, बट सुपर संडे हमारा आज लास्ट है, एंड विल हैव समवन वेरी स्पेशल joining us very shortly, Mr. Shashadri Chari. So we'll talk about him once he's online, once he joins us. Okay, Mr. Priyanshu is saying कि क्या अभी आइडिया शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली काफ़ी सारे आइडियाज़ हमें मिल चुके हैं और काफ़ी बड़ा काम हमारे पास में है आप सभी के आइडियाज़ को स्क्रूटनी करना, उसको चेक करना कि आपके आइडियाज़ ठीक है कि नहीं, आपका बिजनेस मॉडल बनाना, आपका रेवेन्यू मॉडल बनाना. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट एनी न्यू आइडिया. सो आई एम सॉरी प्रियांशु, अभी आपका आइडिया हम नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज हमारे पास सिर्फ 4 दिन है और हमें 4 दिनों में उन हजारों आइडियाज में से सिर्फ 100 आइडियाज सिलेक्ट करना है. सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, बट यू कैन स्टिल सेंड योर आइडियाज टू अस ऑफलाइन. हम आपके आइडियाज को टॉप 100 में नहीं रख सकते, बट वी वांट टू वर्क विथ यू. हम आपके आइडिया पे काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, एंड वी विल इंश्योर द सक्सेस ऑफ योर आइडिया इफ योर आइडिया हैज कॉम्पिटेंस, सब्सटेंस एंड योर टीम हैज कॉम्पिटेंस. या एंड अबाउट द डेली क्वेश्चन लिंक, आई होप आप लोगों को कल तक के लिंक सोशल मीडिया में मिल गए होंगे. जिनको नहीं मिले हैं दे कैन गो टू आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल कम्युनिटी पेज. आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर लिंक्डइन पेज, वहां पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी. ऑलराइट, एंड अबाउट द काफी सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं. फ्रॉम 24th ऑनवर्ड्स विल हैव Principal Secretary MSME, and then we'll have Mr. Suresh Prabhu, and then we'll have Smriti Irani ji and Mohan Das Pai, Krish Gopala Krishnan ji, and few other guests joining us from 24th onwards. आप लोग अपने questions हमें please Gmail पे भेजिए. और किसी चैनल से entertain करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं या किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो वो हमारी टीम तक पहुंचने की गारंटी नहीं है. तो प्लीज send that on our official email ID startuppathshala@gmail.com, and when you send it, don't forget to mention your name, your city and your mobile number. We will try to get as many questions as we can. जितने लोगों के हम ले पाएंगे हम सारे questions लेंगे. And yes, I think we have good evening, Mr. Chari, how are you? Good evening. So you are seeing a different face, not the one that you have put on Twitter. Yeah. We are waiting for you. So I was just telling about the audience your background and आज का session हमारे लिए क्यों special है. So good to have you here and welcome to the day 26 of Startup Pathshala Super Sunday. So what we did Chari ji was every Sunday of Startup Pathshala हम लोगों ने एक सुपर संडे सेलिब्रेट किया है जिसमें हमने स्पेशल गेस्ट, स्पेशल पैनल बुलाया है. पहले संडे हमारे साथ में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से कुछ अच्छे महत्वपूर्ण लोग थे, जिसमें पद्मजा रूपरेल, शशांक फ्रॉम 100x, देन अर्जेंटीना से मिस्टर फ्रांसिस्को, देन रवि फ्रॉम ट्रेड कमिश्नर ऑन्टेरियो कैनेडा. So we had that panel. After that, we had a panel of smart city CEOs, and then we called the college owners and the vice chancellor of dignified universities and colleges of Madhya Pradesh. And finally, what a fitting finale of this Startup Pathshala Super Sunday series. So we are absolutely privileged to have you, sir, on this fine Sunday evening.
And just to tell a brief about you to our audience, I think most of them already know you, but for those who don't know him yet, he is Mr. Seshadri Chari, a veteran Swayamsevak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, and currently serves on the National Executive Committee of Bharatiya Janata Party. And if I am to tell him about if I am to tell you about him a complete CV and the biodata, I think पूरा session ही छोटा पड़ जाना है. So I will cut it off, and we would like to start the session from here on, Shari ji, and welcome to Startup Pathshala, and we look forward to have an insightful conversation with you. So how do we begin? I was told that there'll be I should give a small presentation. Yeah. And then we have a question answer session, right? Yes. So if you have something to share, a presentation or something, we can do it now, or else we can have we can start with your experience, sharing some word of advice to our startups, and then we'll take their questions live. Sure. See, I'll tell you. I'll give a brief background of 5 minutes. Okay. I won't take much time because I think question answer session will be very interesting and very good. The most important thing about startup is, first of all, I must congratulate you and your team for doing an excellent work as far as startup is concerned. So there is a concept that startup, the moment we hear the word startup, we think of Google, we think of Facebook, we think of Twitter, and we think of all these big things. But all these big things, which have now grown huge in size, in financial size, in operational size, administrative size, they all began with a very small idea. So startup is basically what? Startup is an idea. Along with idea, the most important element of a startup is complete faith. You should have faith in that idea. If you have an idea, but you are very doubtful whether it will succeed or not, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब अभी होगा कि नहीं, ये टाइम वेस्ट तो नहीं होगा. If you start with that, it will not work. So you should have an idea. एक जिसको हम विचार कहते हैं, आइडिया, और उस पर विश्वास, complete faith that you are right and you will succeed. These two elements are very important. The third comes concentration. Most of the startups क्या करते हैं, जब स्टार्टअप शुरू होती है, छोटा मोटा कुछ पैसे तो इधर उधर से कुछ मिल जाता है, फिर उस पैसे का वो क्या करते हैं कि वो स्टार्टअप में उसको डालने के बजाय वो अन्य कामों में उस पैसे का उपयोग करते हैं. एक और दूसरा, जब हम स्टार्टअप करते हैं, कुछ आइडिया प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं, कोई हमारा फ्रेंड आके कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इससे तो बढ़िया मैंने सुना है कि सो एंड सो बहुत बढ़िया तरीका कर रहा है, ये छोड़ दो. फिर हम ये छोड़ के उस पर जाते हैं. फिर कोई वहां आके कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल ये तो बड़ा गलत है, तुम जो पहले कर रहे थे बड़ा अच्छा है, फिर हम वापस उस पर आते हैं. ये कभी नहीं करना. कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस आइडिया के बारे में, उसको कार्यान्वित करने के लिए सतत काम करते रहना चाहिए, यानी प्रयत्न जिसको हम कहते हैं, कंसंट्रेशन, ये होना चाहिए. और चौथा फैक्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि ये सब करते समय एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम किसके लिए कर रहे हैं. बहुत पैसा कमाना है, पैसा ही अगर कमाना है तो पैसे कमाने के लिए बहुत से और तरीके हैं. हम अपने आप को टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए. कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी भी अभी जो बने हैं 100 साल के बाद, वो सब पहले छोटे छोटे ही थे. इसीलिए हमारी तुलना उनसे न करते हुए हमारी तुलना अपने आप से करना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं एक बहुत बड़े कार्य के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, दुनिया में एक अच्छा काम पैदा हो इसलिए कर रहा हूँ. ये इस प्रकार की एक सोच लेकर करना चाहिए.
तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप जो लोग स्टार्टअप से जुड़े हैं वो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लकी हैं। आज का जो संदर्भ है, परिस्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक रूपरेखा रखा है। चाहते हैं, और हम सब भी चाहते हैं, दुनिया देश के सभी लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या? स्वदेशी का मतलब बोइंग छोड़ के बैलगाड़ी में जाना नहीं है। स्वदेशी का मतलब आत्मनिर्भर। स्वदेशी का मतलब हमारे देश में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपयोग करके देश की ताकत को बढ़ाना, ये स्वदेशी है, ये आत्मनिर्भर है। दुनिया में किसी के पास हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब हमारे यहाँ पर खाने के लिए अन्न नहीं था, तो PL 480 के नाम पर अमेरिका से हमको खाने का अन्न मिला। हमारे देश में दूध नहीं था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब दोनों जो रेवोल्यूशन हुए वो हमारे अपने ताकत के आधार पर हुए। और तीसरा जो रेवोल्यूशन हुआ वो IT रेवोल्यूशन। IT रेवोल्यूशन में दुनिया में सबसे आगे हमारा नंबर था। और आज फिर एक बार हमें एक और रेवोल्यूशन, आत्मनिर्भर रेवोल्यूशन, स्वदेशी रेवोल्यूशन करने की आवश्यकता है। और यही काम स्टार्टअप के द्वारा ही होगा। इसीलिए मैं अभी आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, आपकी बड़ी सराहना करता हूं कि आपने इस उम्र में, कम उम्र में और काफी कठिनाइयों के बावजूद आप लोग स्टार्टअप से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक व्यक्ति जो स्टार्टअप से जुड़े हैं वो अपने काम में कामयाब हों, सफल हों और देश के सामने एक बहुत बड़ा आप अपने आप में एक उदाहरण बने, ये मैं चाहता हूं। कुछ प्रश्न हो तो हम प्रश्नोत्तर कर लेंगे अभी। जी, थैंक यू चारी जी फॉर दी ओपनिंग रिमार्क्स। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टार्टअप पाठशाला में हमारे साथ 13,000 बच्चे जुड़े हैं, हमने इन सभी से स्टार्टअप आइडियाज़ माँगे हैं और हमारे पास कई सारे आइडियाज़ आए हैं। हमारी टीम जो बैकएंड पे काम करती है उसमें से 100 स्टार्टअप सेलेक्ट करेंगे और इन 100 स्टार्टअप आइडियाज़ को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सबमिट करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को भी सबमिट करेंगे और हमारे पास जो एंजल्स हैं, हम उन सभी स्टार्टअप्स को एक ग्रांट अमाउंट, एक नॉमिनल सा अमाउंट, वी हैव गॉट अबाउट 15 lakhs का फंडिंग सो फार, वो हम इन लोगों को ऑन 26th of January सभी लोगों को देंगे। तो वी वांट दीज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू फील मोटिवेटेड, इसीलिए हम सभी मिलके वी आर ट्राइंग टू नर्चर दिस इकोसिस्टम ताकि लोग और प्रेरित हों स्टार्टअप खोलने से और डरे नहीं और उनको भी लगे कि ये सब सिस्टम उनके लिए है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और प्राइवेट प्लेयर्स का भी सपोर्ट है। So we'll start the question answer session now. And meanwhile, we have Dr. Anuj Garg also joining us. He is the chapter chair of YI Bhopal. So, welcome, Professor Garg. Thank you, sir. Sir, it's an honor to be sharing screen with you, sir. Thank you. Same to you. तो कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों से लाइव लेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमें ईमेल के माध्यम से भेजे हैं, हम वो क्वेश्चन अभी लेना चाहेंगे। तो चार्य जी, पहला सवाल है हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स को लेके। इंडिया इज वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन आज भी अगर स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 2 या 3% ही स्किल्ड वर्कफोर्स है, जहां पे साउथ कोरिया में 96% है, चाइना में 45% है, यूएसए या बाकी कंट्रीज में 55%, 74% है। तो ये जो गैप है, आप इसको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अनाउंस किए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें कहाँ कमी दिखती है? और भारत को वापस से, जैसे आपने बोला, आत्मनिर्भर बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए क्या कमी है, क्या पेन पॉइंट्स है जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए? नहीं, अभी जो आपने फिगर्स बताए हैं वो बहुत सही है और हम अपने आप की तुलना अगर इन सभी देशों के साथ करते हैं तो जिसको हम स्किल्ड कैटेगरी मानते हैं वो कम है हमारे देश में। परंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे देश में स्किल की कभी कोई कमी नहीं थी। स्किल का मतलब क्या? कोई भी जब कोई भी काम करते हैं उस काम को निपुणता से करना, तल्लीनता से करना, टू डू ए फाइन जॉब ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग, उसका एक ट्रेनिंग होता है। हमारे यहाँ पर खेती का काम लीजिए, खेती का सबसे बहुत बढ़िया खेती का काम हमारे देश में सालों साल हुआ है, पिछले हजारों वर्षों से हुआ है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं। इसलिए खेती का जो स्किल है वो हमें किसी ने सिखाया नहीं, परंपरागत हम सीखते आए।
वैसे ही ये मूर्ति कला है। दुनिया में जितनी मूर्तियां होंगी उसमें से 90% मूर्तियां भारत में है, भारत के मंदिरों में है, भारत के शास्त्रों में मूर्तियों का बहुत बड़ा स्थान है। अब ये मूर्ति कला हमको किसी ने सिखाया नहीं। अब ये भी एक दृष्टि से देखा जाए तो स्किल है। हमारे स्किल्स कहाँ थे? एक समय था जब हमारे यहाँ पर कहते थे कि ढाका का मसलिन आपने सुना होगा, कपड़े बुनने का जो व्यवसाय है, जो बुनकर समाज था हमारे यहाँ पर, दुनिया का सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हम लोग बुनते थे। ये स्किल नहीं है क्या? ये भी स्किल तो है ना। पेंटिंग है, चित्रकला है, कपड़े बनाना है, खेती का काम है, ये सब एक दृष्टि से देखा जाए तो स्किल है। हाँ, हम स्किल को अगर दो भागों में बांटेंगे, एक ट्रेडिशनल स्किल्स और एक मॉडर्न स्किल। मॉडर्न स्किल की बात क्या है कि मशीन में काम करना, ये मशीन में काम करना, फिर होनिंग है, ट्यूनिंग है, कटिंग है, पॉलिशिंग है। जो मशीन के साथ जो काम होता है उसको एक अलग प्रकार का स्किल हम मानते हैं। अब ये स्किल हमारे यहाँ पर कम था। उसका कारण पिछले 150-200 सालों में ये जैसे जैसे मशीन का युग शुरू हुआ, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वो हमारे देश में नहीं हुआ, वो इंग्लैंड में हुआ। अब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहां के लोग अपने अपने स्किल में मशीन में काम करने की जो कला है वो उसमें वो निपुण हो गए, प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ से बनाने की बजाय मशीन शुरू हो गया, जिसको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, वो बदल के मशीन क्राफ्ट हो गया। जिसको हम हैंडलूम कहते हैं वो चला गया और पावर लूम हो गया। इसलिए जो लोग हैंडलूम में एक्सपर्ट थे, पावरलूम में कोई उनका काम नहीं था। तो धीरे धीरे, ये एक छोटा उदाहरण है, धीरे धीरे सभी प्रकार के जो काम है जिसका मशीन से ताल्लुक है वो सब काम में हम पीछे चले गए। इसीलिए आप अपने जो फिगर्स बताए हैं वो बहुत सही है, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और फिर पिछले 25-30 सालों में जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे देश से चला गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग सर्विस सेक्टर में, कंप्यूटर में बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जहां पर स्किल की आवश्यकता थी, वहां हम कम पढ़ने लगे। इसीलिए हमें इन दोनों के बीच में तुलना करनी चाहिए और तारतम्य रख के मशीन स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मॉडर्न स्किल कहेंगे, रेलेवेंट स्किल कहेंगे, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। ये आपका कहना बहुत सही है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। राइट सर। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, हमारा उससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, बट उसके पहले मैं एक सेंसिटिव क्वेश्चन लेना चाहूँगा। और काफ़ी लोगों ने हमसे बोला कि आप इस पे बात करें, इस पे कुछ डिस्कशन करें, कुछ गाइडेंस दें कि स्टार्टअप जर्नी वैसे भी काफ़ी टफ होती है, नर्व रैकिंग होती है। थिंग्स इनेविटेबली हमेशा गलत ही होती है हमारे साथ। एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी वैसे भी टफ है, और कंसीडरिंग द करंट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, मल्टी टैलेंटेड यूथ भी इंडिया में कुछ सुसाइड कमिट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू थिंक दीज यंग फाउंडर्स, यंग स्टार्टअप ओनर्स शुड कोप अप विद द करंट सिचुएशन, और अपने बिजनेस और मेंटल हेल्थ और इनके बीच में बैलेंस कैसे बनाकर रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी है, इस पर विचार करना चाहिए। और एक बात आप ध्यान रखिए, हम लोग स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सब साथ में रखना चाहिए। हमें कभी भी ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि हम पहले ही स्टार्टअप में यशस्वी हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये कभी होगा नहीं। अगर होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात, जब कभी हम स्टार्टअप में काम करते हैं उसमें 2-3 बातें होती हैं। एक तो हमारा पूरा समय देकर हम काम करते हैं और फिर भी यश नहीं मिलता है तो हमें कभी कभी लगता है कि हमने जो कुछ भी किया वो समय बर्बाद हो गया। कभी ऐसा नहीं सोचना।
साइंस का सबसे पहला नियम है कि साइंस में अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो साइंटिस्ट क्या कहता है? साइंटिस्ट कहता है कि आई हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। मतलब 2 + 2 = 4, ये अगर सत्य है, जब हम 2 + 2 = 5 लिखते हैं और वो गलत है, तो हमें पता चलता है कि 2 + 2 = 5 ये गलत आंसर है। इसलिए उस रास्ते में हमें जाना नहीं है। इसीलिए अपयश मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर है। आप ये समझ लो कि जिस रास्ते पर आपको जाकर यश मिलना है, वो रास्ता गलत निकला, वो सही रास्ता नहीं है, इसीलिए उस रास्ते में जाना नहीं है। लेकिन उस रास्ते में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए स्टार्टअप में फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस, फेलियर इज इक्वल टू गेनिंग एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिलने के लिए जो खर्चा करना पड़ा वो आपने किया, आप उसको ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। आपने 50,000 रुपया डाला और आपको कुछ नहीं मिला, 50,000 रुपया नहीं मिला, लेकिन आपको 50,000 रुपये का वर्थ एक्सपीरियंस मिला, जो आपको नहीं मिलता अगर आप वो 50,000 रुपया खर्चा नहीं करते। एक बात ध्यान रखिए, इसीलिए स्टार्टअप को कभी भी आर्थिक दृष्टि से आप मोजमाप मत करिए। डोंट कैलकुलेट योर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और मनी और प्रॉफिट। आपने जो काम शुरू किया उसमें आपको यश कितना मिलता है, इस पर होना चाहिए। जब ट्विटर शुरू हुआ तो 5 लोग भी नहीं थे ट्विटर में, तो अगर वो ट्विटर वाले ने ये सोचा होगा कि अरे 5 ही लोग हैं, क्यों कर रहा हूं मैं, बेकार अपना टाइम बिता रहा हूं, छोड़ दिया होता तो आज ट्विटर होता ही नहीं। जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट फेलियर के आधार पर ही हुए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए स्टार्टअप में। इसीलिए स्टार्टअप में हमें फेलियर जो है वो अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। फेलियर इज एक्सपीरियंस, फेलियर इन एन एक्सपेरिमेंट इज एक्सपीरियंस, दैट इज सक्सेस। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कुछ भी काम जब करते हैं तो हमारे आसपास एक टीम बनाना चाहिए। टीम में कम से कम 3-4 लोग ऐसे हों। एक अच्छा दोस्त भी होना चाहिए जो इंजीनियर नहीं होगा, बैंकर नहीं होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन वो हमारा दोस्त अच्छा होना चाहिए। उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। वो कहेगा कि अरे यार मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यार, फिर भी बताते रहो उसको। यानी हमारी जो दिल की बात है वो धीरे धीरे 1 या 2 लोगों से हमें बातचीत करती रहनी चाहिए। तब क्या होगा, जब हमको जब यश मिलेगा तब भी वो हमारे साथ होंगे, हमको जब अपयश मिलेगा तब भी वो हमारे साथ होनी चाहिए। तीसरी बात, हम जिनसे पैसा लेते हैं स्टार्टअप के लिए, उनके साथ पूरे ईमानदारी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ने 50,000 रुपया दिया हमारे स्टार्टअप के लिए, हमको उसको जाकर बोलना चाहिए कि भैया आपने 50,000 रुपया दिया, उसका मैंने ये किया, ये किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना काम किया, इतना खर्चा हुआ, इतना मेरे पास बचा है, इतना यश मिला, इतना अपयश मिला। जो होगा वो सीधे सीधे बताओ। उसको ये मत कहो कि अरे आपका 50,000 तो मैंने 1 लाख तो 2 दिन में कर दिया। ये कभी नहीं करना। ये एक प्रकार का, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी इन व्यवहार, एक खुलापन व्यवहार में हमारा होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मन हल्का होगा, उसको हमारे ऊपर विश्वास होगा, और जो फेलियर है वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इन सभी बातों को हमें ध्यान रख के स्टार्टअप में व्यवहार करना चाहिए।
वेरी परफेक्टली पुट इन सर। मैं अगर समराइज कर सकूं जो आपने बोला कि जो स्टार्टअप्स को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सिर्फ एक प्लान बना के आप उस पर नहीं चल सकते। हमने पहले भी डिस्कस किया, यू हैव टू बी एजाइल अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, अपने फंडिंग एवेन्यूज में, हर चीज में आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर आपने बोली, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है। इतना ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, अगर आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ ट्रांसपेरेंट हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस तब होता है जब आप चीजें छुपाते हैं, आप कुछ और कमिट करते हैं, ओवर कमिट करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, तो आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है। जितना इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो आई थिंक स्ट्रेस काफी कम होगा आपको। फिर कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं, सही बात है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एग्री विथ ऑल ऑफ दिस। करेक्ट, राइट। Anuj sir, I think you have a question for sir, if you want to ask. सर मोस्ट जो हमारे श्रोत आज व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उसमें बहुत सारे लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आपकी कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, और आपने जो एक मूवमेंट चलाया मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो उस समय का समय तो और ज्यादा कठिन होता था। एज अगर आपको मैं फ्लैशबैक में अपने कॉलेज डेज में भी लेके जाऊं, तो आज के स्टूडेंट्स जो आज कॉलेजों में हैं, जो इंटरनेट पे आपको अभी सुन पा रहे हैं, और आपने जब अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में द वे यू लेड द संघर्ष एंड द मूवमेंट सिंस योर कॉलेज डेज, सो यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स एंड यू हैड द, तो आप उस अपने समय में और आज के कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो क्या आप उनको कुछ इनपुट देना चाहेंगे? सॉरी सीके, इट हैज नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप, बट जो सुसाइडल बात आई, तो वहां पे हम अपने छात्र, जो युवा छात्र हैं, तो सर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। अगर सर कुछ उसमें से बातें शेयर करें या इंस्पायर करें हमको, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। नहीं, आज 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 की जो पीढ़ी है, वैसे मैं मैं उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पास ये स्टार्टअप और व्यवसाय और जिसको हम कमर्शियल एस्पेक्ट कहते हैं उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया है, मैं कोई कमर्शियल बात नहीं की, मैंने यहाँ तक कोई नौकरी भी नहीं किया। पूरी जिंदगी में मैंने नौकरी नहीं की। मैं ऑर्गेनाइजर का 12 वर्षों तक संपादक था, लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिलता था। मैं एक पगारी नौकर नहीं था, इसीलिए नौकरी करना ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात है, हमने संघर्ष बहुत किया, लेकिन आज का जो समय है उसमें संघर्ष की इतनी, इस प्रकार की जो जिस प्रकार के संघर्ष हमें करना पड़ा, ऐसा आज संघर्ष का माहौल नहीं है। आज का जो संघर्ष है वो कुछ और है, और अलग प्रकार के है। एक जिसको हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कहते हैं। आज हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। यहाँ पर फिश ईटिंग फिश, डॉग ईट डॉग, इस प्रकार का एक कंपटीशन में हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। हमारे पास जो साइंटिफिक प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, वो बहुत है, परंतु इन सभी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का हम कैसे उपयोग करें, इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर समय का, हर व्यक्ति के सामने हर एक प्रत्येक समय में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास एक मूल मंत्र होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया। उन सभी बातों को ध्यान में अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है, आज जो लोग स्टार्टअप से जुड़े हैं, वो ज्यादा जल्दी यशस्वी हो सकते हैं। दे विल गेट रिजल्ट्स मच फास्टर देन व्हाट आई कुड थिंक ऑफ अबाउट 40 इयर्स बैक और 50 इयर्स बैक। ये एक बहुत बड़ा आज का एक रेवोल्यूशन है। आज के समय में एक्सपोजर भी है, बहुत बड़ा एक नॉलेज का जो फील्ड है वो हमारे सामने खुला है। मेरे समय में मुझे याद है, हम लोगों को लेक्चर लेना पड़ता था, लेक्चर सुनना पड़ता था, नोट्स बनाने पड़ते थे, ध्यान रखना पड़ता था। हमारे पास कोई गूगल नहीं था। हमको अगर कोई विषय चाहिए तो हमें जाकर लाइब्रेरी में जाकर किताब उठा के पढ़ना पड़ता था। कोई गूगल नहीं था। आज आप देखिए, आपको अगर मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप 5 मिनट में, जितनी दुनिया में मेरे पास जितनी जानकारी मुझे पता नहीं होगा उतना आपको पता होगा। तो यही आप अगर बिजनेस में करते हैं
तो आपको अगर आज एक बिजनेस करनी है तो आप जस्ट गूगल में जाइए, उस बिजनेस में कितने नुक्स हैं, कितने डूज हैं, कितने डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके पहले जिन व्यक्ति ने जो कुछ भी किया, उसने अच्छा किया कि खराब किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, धोखा क्या हुआ उसका, ये सारा आपको पता है। इतना सारा पता होने के बाद आपको अगर उस बिजनेस को सही ढंग से यशस्वी करना है तो आपको उसमें लगन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एकनिष्ठता चाहिए और एक प्रकार से जुड़कर आपको उस बिजनेस को करना चाहिए। इसीलिए आज का समय जो है वो ज्यादा उपयुक्त है। थैंक यू सर एंड थैंक यू अनुज सर फॉर दैट क्वेश्चन। सर हमारे एक फेसबुक यूजर हैं, उनका जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिया उससे संबंधित एक प्रश्न है उनका कि इंडिया में कई सारे छोटे व्यवसायी हैं जो अपने आप को स्टार्टअप नहीं मानते और अनफॉर्चुनेटली कई सारी स्टार्टअप इनेबलर एजेंसीज भी उनको स्टार्टअप नहीं मानती, लेकिन वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना एक सिलिकॉन वैली में बैठा एंटरप्रेन्योर या हमारे बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद का बैठा कोई टेक स्टार्टअप। तो वो अपने आप को, उनके आइडिया भी अच्छे होते हैं लेकिन वो फिर भी फॉर सम रीजंस अपने आप को स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का हिस्सा नहीं मानते। तो आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे? रिसेंटली आई थिंक एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज हुई, इस पे थोड़ी और क्लैरिटी आनी बाकी है, बट विद योर एक्सपीरियंस व्हाट काइंड ऑफ सजेशन वुड यू गिव टू पॉलिसी मेकर्स कि हम उनको भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में साथ में लेके आए और जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में, जिनका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी हम इस इनोवेशन सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनाए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, सरकार को जो कुछ भी करना है, हम समय समय पर सरकार को अनेक लोग एडवाइस देते रहते हैं। हमारी भी एक संस्था है, हम भी करते रहते हैं। और जो सरकार की जो नीति आयोग है उसके साथ भी हम लोग जुड़े हैं। और जो विदेश मंत्रालय है वो उसका जो बिजनेस और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हैं, जिसको हम RIS कहते हैं, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका भी मैं एक बोर्ड का मेंबर हूँ। और अभी भी हमने एक रिपोर्ट बनाया है जो हमने सरकार को दिया है और उस रिपोर्ट को व्यापक करके हम सरकार को दे रहे हैं। इसीलिए सरकार के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध समय समय पर चलता ही रहता है। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम जब तुलना करते हैं कि अमेरिका में बैठा हुआ एक आदमी जो है यही भारत का ही व्यक्ति है। अब आजकल हमको पता ही है कि सिलिकॉन वैली, पूरा सिलिकॉन वैली भारत चलाता है। अगर भारत के लोग सिलिकॉन वैली छोड़ दिया तो शायद दूसरे तीसरे दिन सिलिकॉन वैली बंद हो जाएगा। ये आजकल अमेरिका की हालत है और वो भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां का सिस्टम जो था वो एक ऐसी विषय के लिए अच्छा सिस्टम था। अमेरिका के बारे में कहते हैं इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई भी काम करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अब जिस देश में इस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा। आपको शायद पता होगा, एक समय था जब जापान का नाम बहुत खराब था। कोई भी जापान का माल, भारत में भी जब जापान का माल खरीदते थे तो आजकल चीन के माल के बारे में जो कहते हैं ना कि चीन का माल है ये कभी चलेगा नहीं, पता नहीं उनका कोरोना कैसा चल गया, बाकी कोई चीन का माल चलता नहीं है, ये जैसे कहते हैं वैसे ही जापान के बारे में कहा करते थे। तो जापान में कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत सोचा कि हमारा नाम खराब क्यों है, तो हमें अच्छी चीजें हम क्यों नहीं बना सकते हैं। तो एक व्यक्ति था जो बैंक में गया और कहा कि भैया मुझे पैसे दे दो, मैं कुछ नई चीज बनाना चाहता हूँ। उन दिनों में आपको शायद, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक रेडियो होता था। रेडियो मतलब हमारा आजकल जो फ्रिज है ना, वो फ्रिज का आधा साइज होता था रेडियो। और वो वॉल पे चलते थे, उसमें एक वॉल होता था, एक छोटा सा ऐसा एक वो होता था, उसके अंदर जैसे बल्ब में जो अंदर टंगस्टन है ना, वैसे वॉल होते थे। उसके आधार पर रेडियो चलता था। रेडियो वेव अलग होता था। रेडियो के लिए एक लाइसेंस होता था। रेडियो के लिए हमको फीस भरना पड़ता था। हर एक आदमी को साल का कुछ 5 रुपया फीस होता था रेडियो के लिए। आपने रेडियो खरीद लिया तो उसके साथ आपको साल में 5 रुपया टैक्स भरना पड़ता था। रेडियो फीस करते थे, कहते थे उसको। तो एक ऐसा था। अब उस आदमी ने सोचा
कि गाने तो सुनते हैं, लेकिन ये रेडियो अगर हम ऑफिस चले जाते हैं तो गाना नहीं सुन पाते हैं, सड़क में जा रहे हैं तो गाना नहीं सुन पाते हैं। तो हम इतना बड़ा जो रेडियो है उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं क्या? तो उसने क्या सोचा कि इस रेडियो जिससे चलता है उस वॉल की जगह मैं एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, उसके आधार पर हम एक रेडियो बना सकते हैं। ये जब उसने जाकर बैंक में कहा तो बैंक वालों ने हंसने लगे। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। रेडियो लेके कोई बाहर जा सकता है क्या? हंसे उस पर, वो बाहर आ गया। लेकिन उसी बैंक में एक और व्यक्ति बैठा था, उसने सोचा कि तुम जो आइडिया बोलते हो बड़ा अच्छा आइडिया है, कितना पैसा चाहिए? उसने कुछ भी कहा होगा इतना पैसा चाहिए। उसने कहा कि ठीक है तुम मुझसे ले लो, और कितने दिन में तुम मुझे बताओगे? तो उसने कहा मुझे कम से कम 1 साल चाहिए। 8 महीने के अंदर उसने उस पैसे से एक ट्रांजिस्टर बनाया, और ट्रांजिस्टर भी छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, वो भी एक ब्रीफ केस इतना बड़ा था वो ट्रांजिस्टर, लेकिन रेडियो से कम छोटा था और उसको हाथ में ले जा सकते थे, ऐसा बन गया वो। वहां से शुरू होके गाना सुनते हैं, वो इतना छोटा सा एक रेडियो या कुछ होता है वो जो कान में लगा के हम उसमें सुनते हैं। कहां से कहां आ गए हम लोग। और इस आदमी का नाम था सोनी। ये सोनी कॉरपोरेशन जो हम सुनते हैं, उसका जो मालिक है वही ये व्यक्ति था जिसने ये सब शुरू किया। इसीलिए सबसे बड़ा जो शुरुआत है उसके लिए प्रोत्साहन बहुत जरूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया पिछले 60-70 वर्षों में, जितना प्रोत्साहन हमें करना चाहिए उतना नहीं किया। ये हमें मानना चाहिए। सरकार के खिलाफ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, कोई भी सरकार हो, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा देश का नौजवान, हमारा देश का व्यक्ति भी कुछ बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए फील्ड में अभी डिफेंस का देखिए, ब्रह्मोस नाम का एक शस्त्र है, मिसाइल है। ये ब्रह्मोस मिसाइल की जो पूरी आइडिया कंसेप्ट है वो एक भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया, लेकिन हमारे देश ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम जो जितना भी हो लेकिन तुम हमारे देश में नहीं कर सकते हो। हमने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का कंपनी शुरू किया, और ब्रह्मोस का 10% हमारे देश में बनता था, 90% रूस में बनता था। आज 50 साल के बाद उसी ब्रह्मोस का 90% हमारे देश में बनता है, सिर्फ 10% रूस में बनता है, और हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए अनेक फील्ड में हमने प्रगति बहुत किया है, लेकिन जितनी भी प्रगति हमने की है वो अगर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 2 या 3% होगा। इसीलिए हमको बहुत करना है। इसलिए हम सरकार को बार बार कहते रहते हैं कि जो लाइसेंस, कोटा, परमिट, इस प्रकार के जो नियम, रूल्स, रेगुलेशन ये सब है, उसको जितना शिथिल कर सकते हैं शिथिल करना चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है उस पर पूरा भरोसा रखो, यकीन करो कि वो आपका नाम रोशन करके रहेगा। ये हम सरकार को बार बार कहते हैं, और ये मैक्रो लेवल पर, लेकिन माइक्रो लेवल पर क्या होना चाहिए इस पर भी हम काफी सरकार को योजनाएं देते रहते हैं। जो लोग स्टार्टअप से संबंधित हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा कि आपको जो कठिनाइयां आती हैं वो हमें समय समय पर बताते रहिए। उन कठिनाइयों से कैसे रास्ता निकालना, और सरकार का पक्ष क्या है, उसको सरकार से अगर कोई मदद की आवश्यकता है तो उसको कराने का काम हम लोग अवश्य करेंगे। जी राइट। सर आपने जो पॉइंट अभी रेज किया उसी से संबंधित प्रश्न है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके। आज भी इंडिया में हम लोग हेवीली डिपेंडेंट है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, जहाँ पे हम चीप इंपोर्ट मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे आइटम्स भी हमारे कंट्री में हम नहीं बनाते। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मोटिवेशन थोड़ा सा कम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, उसी आई थिंक प्रधानमंत्री जी की स्पीच के बाद ही हमने स्टार्टअप पाठशाला शुरू किया था। हमें लगा कि स्टार्टअप का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा
हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, लेकिन उतना ही योगदान होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टार्टअप्स हो या फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज हो। तो आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव बट आल्सो हाउ शुड एजेंसीज लाइक अस, हाउ शुड द स्टार्टअप इनेबलर पिलर्स लाइक अस या जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उनको क्या करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी स्टार्टअप्स आगे बढ़ के आए, और ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में इंपोर्ट को लेके वो थोड़ा हम कम कर सकें। नहीं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर का जो डेफिनेशन है उसमें परिवर्तन किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अच्छा काम है। और भी इसमें शिथिलता लानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। अभी भी होगा और थोड़े समय में ये भी हो जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन ये एक साथ जुड़े हैं, एक। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा नियम है, इट शुड बी आइडियल फॉर डिमांड एंड सप्लाई मैच। हम क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं इसका हमें पूरा ध्यान रहना चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपने उदाहरण दी। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ये बहुत बड़े पैमाने पर हमें करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हम बाहर से लाते हैं वो असेंबली लाइन के लिए लाते हैं। इसीलिए हम अगर एक रेफ्रिजरेटर बनाना चाहते हैं, या सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है वो मोटर कार का है। एक मोटर कार में कम से कम 1 मिलियन चीजें लगती हैं। मोर देन 1 मिलियन थिंग्स गो इन वन मोटर कार। एक मोटर कार बनाने के लिए 1 मिलियन चीज की जरूरत है। इसीलिए अगर कोई मोटर कार कंपनी चलाता है तो उसको एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। 1 मिलियन पार्ट वो खुद नहीं बना सकता है, उसको बाहर के लोगों से ही लेना पड़ेगा। मारुति ने जो सेटअप किया, एक वेंडर लिस्ट बनाया, उस प्रकार का उन्होंने बनाया। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के मैन्युफैक्चर में जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट है या हम किसी और के लिए कर रहे हैं। और अगर हम शुरू में ही किसी और के लिए कुछ बना रहे हैं तो हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो उसके लिए होगा। उदाहरण के लिए कहता हूं, एक हमारे एक मित्र हैं जो मारुति के लिए सीट बनाते थे। तो मारुति के लिए सीट जो बनाया उन्होंने, तो उन दिनों में मारुति का चलता था, मारुति 800 आता था शुरू में। तो मारुति 800 का सीट बनाया, बहुत यशस्वी हो गए, बहुत अच्छा धंधा चला उनका, बहुत पैसे बनाया। मिस्टर जिंदल उनका नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और एक दिन वो बात कर रहे थे मारुति वालों से, तो मारुति वालों ने कहा कि ये जो 800 है ना, मारुति 800, उसके वो हम कम कर रहे हैं, उसके जगह पर हम कुछ और नई गाड़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं अगर होता उस जगह तो मैं उसकी बड़ी तारीफ करके चले आता था, लेकिन ये आदमी बिजनेसमैन है, थे, इसने क्या सोचा, अरे आप नई गाड़ी बनाने जा रहे हैं तो फिर मारुति 800 का क्या होगा, मैं उसके लिए सीट बनाता हूं, मेरा धंधा बैठ जाएगा। तो उसने कहा कि ये जो नई गाड़ी आप बनाते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, आपको क्यों। फिर उन्होंने कहा कि भैया मैं मारुति 800 के लिए सीट बना रहा हूं, आप जो नई गाड़ी बनाएंगे उसके लिए सीट मैं बनाऊंगा ना। तो ये बिजनेस का टेक्निक होता है। मैन्युफैक्चरिंग में यू शुड ऑलवेज बी एबल टू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट टुमारो। आज मार्केट के लिए क्या चाहिए वो आप बनाते हैं। इसलिए डिमांड सप्लाई ये बहुत जरूरी है, और सप्लाई चेन को ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। ये दो बातें हमको मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन में बता रहा हूं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में सरकार की तरफ से बहुत कुछ करना चाहिए, मैं मानता हूं, परंतु अपनी ओर से भी हमें जो आज के जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, उस फ्रेमवर्क में हमको क्या करना चाहिए इसको सोचना चाहिए। राइट।
एक और प्रश्न है हमारा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को लेके कि आज हमारे पास गवर्नमेंट्स को भी डिजिटाइज करना है, उनको भी डिजिटलाइज करना है, साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, उनको भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए। हमारे स्टार्टअप्स भी इनोवेशन पे ध्यान देते हैं और बड़े-बड़े यूनिकॉर्न्स हमारी कंट्री से भी आ चुके हैं। लेकिन आज भी एक मिसमैच है, जब हमारा एक आज का बच्चा, एक स्टूडेंट स्टार्टअप आइडिया सोचता है, तो वो कभी भी गवर्नमेंट को ध्यान में रख के नहीं सोच पाता। वो सोचता है कि मुझे एक मार्केट ट्राई करना है, उनका एक स्पेसिफिक मार्केट है, एक सेगमेंट है, एक इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत ही कम स्टार्टअप ऐसे हैं जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत कई सारे एग्जामेशन भी दे रखे हैं, फिर भी आज भी एक बहुत बड़ा गैप है। आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में उस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स गवर्नमेंट को ध्यान में रख के हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए? नहीं, देखिए, हमको केवल गवर्नमेंट को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए, बहुत जरूरी है, उसी में सबसे ज्यादा पैसा भी है, अच्छा भी है, नो डाउट अबाउट इट। परंतु हमको गवर्नमेंट केवल एक एंटिटी नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन ए टाइम्स विच इज कॉल्ड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। हमको मार्केट ध्यान में रखना चाहिए, गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। एक इकोनॉमी का सबसे बड़ा नियम ऐसा है कि देयर आर 3 थिंग्स व्हिच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन: रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल मकान के बारे में थोड़ा लोग डरते हैं बोलने में, लेकिन आई स्टिल सब्सक्राइब टू दिस व्यू कि लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। आपका स्टार्टअप अगर रोटी, कपड़ा, मकान से संबंधित है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मार्केट स्टडी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के पहले, हम प्रोडक्ट के पहले, सर्विस के पहले हमको सोचना चाहिए कि इसका एंड यूजर कौन है, हम किसके लिए बना रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और वो अगर हमारे दिमाग में सही रहेगा तो हम कभी भी फेल नहीं होंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपका कहना सही है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोक्योरिंग एजेंसी, तो गवर्नमेंट को ध्यान में रखकर भी हमें कुछ बातें करनी चाहिए। लेकिन केवल गवर्नमेंट पर डिपेंड होकर हमारा पूरा स्टार्टअप चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ओनली टेक द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन वी शुड बी ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। ये तब आएगा जब हम मार्केट को समझ पाएंगे, देन वी विल सक्सीड। सर सॉरी, आपने सिर्फ 30 मिनट का समय मुझे दिया था, बट आई थिंक डिस्कशन इतना अच्छा चल रहा है कि हमने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया। विथ योर परमिशन मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहूंगा, विथ योर परमिशन सर। बताइए। जी, एक तो हमारा सवाल, आजकल एक ट्रेंड बन चला है कि जब हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हमें अपने स्टार्टअप को बेचना है, हमें अपने स्टार्टअप को बड़े प्लेयर को बेचना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है और कुछ और स्टार्टअप शुरू करना है। ये ट्रेंड इसीलिए बना है क्योंकि हमारे जो स्टार्टअप एंसेस्टर्स हैं, भले ही वो बंसल ब्रदर्स हों या कोई और हो, उन्होंने अपने स्टार्टअप चालू किया, फंडिंग रेज की, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज लेके आए। हमने सोचा कि शायद अब इनोवेशन को और आगे ले जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली कंपनी उन्होंने बेच दी और नया स्टार्टअप चालू किया। आज हमारे बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि ठीक है सर, आइडिया ये है, मुझे 3 साल चलाना है, इतना कस्टमर बेस बनाना है, उस स्टार्टअप को गूगल को, फेसबुक को बेचना है और नया चीज शुरू करनी है। ये ट्रेंड मुझे थोड़ा सा परेशान करता है। कहीं ना कहीं इनोवेशन हमारा खत्म होता है इससे। जैसे हमने सोचा फ्लिपकार्ट आया है तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन को टक्कर देगा और हमारे खुद का एक स्वदेशी प्रोडक्ट है, बट इवेंचुअली वो वॉलमार्ट ने ही खरीद लिया और शायद वो स्टार्टअप का आजकल गोल हो चला है कि हमें किसी बड़े प्लेयर्स को बेचना है। तो आपका उसमें क्या टेक है कि कैसे हम इनोवेशन को बचा सकें, और ये जो ट्रेंड है, जो एक डॉन्टिंग ट्रेंड है, क्या इससे कभी हम छुटकारा पा पाएंगे या फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री हमारी ऐसी जाने वाली है? I think we have lost Shashadri ji. अनुज सर आप हैं? We'll try from. Yes, we'll try from the back end. Please ask him. Yes, sir is joining. Sir is back. So it is always great to have some people who have seen the decades of struggle and जिस जमाने में एक ट्रांजिस्टर was a luxury और हम इंटरनेट पे हैं,
तो definitely seeing comments, lot of people are appreciating the way sir is putting examples. Yeah. So by the time we have sir back, कुछ questions है जो हम लेना चाहेंगे अनुज सर. Yes. आई थिंक आप काफी लोगों का कहना ये है कि अभी तक हमें फोन नहीं आया तो हमारा स्टार्टअप सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारे पास 995 स्टार्टअप आइडियाज है और हम सभी को एक बार फोन करेंगे. हम आपने जो भी हमें ईमेल किया है, हम आप हमारी टीम, हमारे मेंटर्स आपसे एक बार कम से कम बात करेंगे, आपके आइडियाज को सुनेंगे, आपकी टीम का कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, आइडिया का स्केलेबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हमने आइडिया बिना आपको कॉल किए आपका आइडिया रिजेक्ट हो जाए. दैट विल नेवर हैपन. सो डोंट यू वरी अबाउट दैट. वी आर नॉट गोना डू दैट. 26 जून, जरूरी नहीं कि 26 जून तक वो प्रक्रिया चले. प्रक्रिया हम आपके इस माध्यम से बने रहेंगे. YI भोपाल, इंक्यूबेशन मास्टर, JIC, ये सब एस्टैब्लिश संस्थानें हैं. आपके इम्पोर्टेंट ये है कि हम सही आइडिया को चुने जिनको हम आगे ले जा सकते हैं. अगर आपका आइडिया नहीं चुना गया, इसका ये मतलब नहीं कि आइडिया में दम नहीं है. हो सकता है जिस प्रकार का हम सपोर्ट सिस्टम दे पा रहे हैं उसमें हम कुछ लोग को चयन करेंगे फेस बाय फेस, बाकी को हम कोशिश करेंगे अपने बाकी नेटवर्क से भी कनेक्ट करें. क्योंकि अगर जैसे आपका मेडिकल से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप है, वो हम उसको हम नर्चर करने के लिए उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं दे पाएंगे, तो इट विल बी एन इनजस्टिस कि हम उसको सेलेक्ट करें और आगे जाके उसको नर्चर न कर पाए. सो वी आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय CSGF एंड अदर बॉडीज, तो उनका भी हमको इनपुट उसमें लेना पड़ता है. सो एक स्टार्टअप को मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सब्र रखें और बिल्कुल विश्वास रखें. इस कोविड और इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं लोगों का एक दूसरे पे विश्वास खत्म हो रहा है, बट ये सारी पहल हम लोग का एक कॉमन उद्देश्य ये है कि लेट्स ब्रिंग बैक द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस एंटायर स्टार्टअप पाठशाला इज beautifully converging towards its conclusion with lot of good speakers in the coming month, in the coming week, in the coming 3-4 days. We have a very good lineup of speakers and कुछ क्वेश्चन सीखे सर आप ले सकते हैं कि जो श्रोताओं के कुछ क्वेश्चंस मतलब आए हैं. एक जो क्वेश्चन था कि आप लोग अपना फीडबैक हमें कहाँ दें, आपको जो क्वेश्चन पूछना है हमारे स्पीकर से, startuppathshala@gmail.com. आप फेसबुक में, ट्विटर में, बाकी जगह पोस्ट कर सकते हैं, बट वहां से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है. सो वी वुड सजेस्ट कि आप हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी startuppathshala@gmail.com पे अपने क्वेश्चन भेजें. बी स्पेसिफिक, आप किस स्पीकर से पूछना चाह रहे हैं. आप सुरेश प्रभु जी से पूछना चाहते हैं, आप स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं, आप मोहनदास पाई से पूछना चाहते हैं, या फिर आप क्रिस गोपालकृष्णन से पूछना चाहते हैं. अगर आप स्पेसिफिक होंगे तो हमारे लिए आसान होगा आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट करना. हम लोगों का प्लान ये है कि आप लोगों को हम उस दिन सेशन में लाइव लेके आए. जैसे आज अनुज सर लाइव बैठे हैं, मैं आपके सामने लाइव हूं, हमारे स्पीकर चारी जी आपके सामने लाइव थे, वैसे आप ही सामने आए, आप लाइव आए और आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आप स्पीकर से पूछे. उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा आपका भी हमें एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगा. तो वी नीड टाइम फॉर दैट, एंड इसीलिए अगले 2 दिनों में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें हमारे जीमेल आईडी पे भेजिए. अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपका एक छोटा सा वीडियो टेस्ट होगा, फिर हम आपको सीधे ऑनलाइन उस दिन स्पीकर के सामने लेकर आएंगे. So I think that clears all your doubt. But within 2 days, please send your questions. Be specific. Don't forget to mention your name and mobile number, please. So 2 days includes today, मतलब 22 तारीख तक. आज 21 है सर, 22 तारीख तक. कल मंडे की शाम तक आप 8 बजे शाम तक हमारी जो पाठशाला खत्म होती है उसके 1-2 घंटे, 8 बजे के शाम तक आप अपने क्वेश्चंस अपने जिसके लिए भी आप पूछना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे सबको मौका दें. कभी कभी हो सकता है आपको सिर्फ एक से मौका मिले, ताकि वी हैव मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड, तो हजारों की संख्या में हमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. तो बट आपकी ये शक्ति है, आपकी ये पाठशाला है, और आफ्टर 26th also we'll try to maintain this an email ID and a connect with you, because from here we will select some 100 ideas and take it forward. Yeah. आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टअप आइडियाज को लेके, आई एम सॉरी, एक क्वेश्चन था विशाल शक्ति जी का. वी हैव केस स्टडीज ऑफ वेरियस सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, but if there would have been sessions with failed startups to better understand what mistakes they made which led them towards failure. क्या इस पे सीके जी कुछ आप बोलेंगे कि वो फेलियर्स की भी सेशंस की लगातार बात हुई है, और बहुत कुछ हमें और कवर करना है स्टार्टअप.
यस सर। जी। इसके बारे में आपको याद होगा अनुज सर, हमने एक सेशन जो हमारे जिसमें आरजीपीवी के वाइस चांसलर थे हमारे कॉलेज ओनर से, हमने उस दिन चर्चा की थी कि हमें स्टार्टअप फेलियर को भी सेलिब्रेट करना है और हमें फेलियर्स पे भी बात करनी है। तो बिफोर 26 वी विल हैव अ सेशन, लेट नाइट एडिशन। हमने कुछ सेशंस किए हैं लेट नाइट के। हमारा एक लेट नाइट प्रोग्राम होगा, क्योंकि बाकी दिन तो हमारे 5 to 6 लाइंड अप है, बट वी विल हैव वन प्रोग्राम बिफोर 26 लेट नाइट एडिशन, जिसमें हम स्टार्टअप फेलियर्स की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। विशाल जी, आपके कुछ आइडियाज हैं तो आप प्लीज हमें ईमेल कर दीजिए। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज आइडियाज एंड योर केस स्टडी एज वेल इन आवर डिस्कशन व्हेन वी डू दैट, डेफिनेटली बिफोर 26th of June। और एक सर अनुज सर, जो लोगों को अभी कहना है कि क्या हम अब स्टार्टअप आइडिया ले सकते हैं? हमने पहले भी बोला, सेशन के शुरू में भी मैंने आपसे बोला, हमारे पास मोर देन 900 स्टार्टअप आइडियाज हैं। अभी और आइडिया लेना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हम नए आइडिया अभी नहीं ले सकते। आप हमें उन्हें भेज सकते हैं, बट दे मे नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दिस टॉप 100 स्टार्टअप आइडियाज। दैट वाज आवर इनिशिएटिव जो हमने स्टार्टअप पाठशाला के दौरान चलाया। बट हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपकी हेल्प करना चाहेंगे। वी कैन कंटिन्यू डूइंग दैट आफ्टर 26, बट 26 तारीख को जो हमने 100 स्टार्टअप आइडियाज लेने हैं, उसमें अब हम नए आइडियाज को इंक्लूड नहीं कर सकते। और मेरा ये निवेदन है कि आप फिर भी आइडियाज दीजिए। अगर आपका देखिए वो दैट विल बी इनजस्टिस। हम अपनी कैपेसिटी और अपने उस हिसाब से करेंगे। जैसी 100 के बाद दे विल बी द नेक्स्ट फेज एंड वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट बैक। सो हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट जैसा सीके जी ने कहा कि वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट टू एवरीवन हु हैज सबमिटेड द आइडिया। एंड हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, अभी तक आप रुके थे, अब आप you are having that confidence, do share with us and your idea will be protected. It will not be shared with any agency. आपका उसमें copyright है, वो कहीं आगे नहीं जाएगा। इस ट्रस्ट के साथ आप कर सकते हैं, because the entire intention of this पाठशाला is with the involvement of government and other agencies is to encourage the risk taking एंड एक्शन डूइंग थिंग्स, कि हमारे यूथ कुछ एक्शन करें, कुछ रिस्क लें और हम उनको हैंड होल्डिंग दें ताकि वो उसमें सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, वो एक अलग पहलू है। हम रिजल्ट की कामना ना करें। एंड आज ग्रहण था एंड हमें वेदों से और भगवत गीता से यही होता है कि फल की इच्छा मत करें, अपन लेट्स डू थिंग्स, लेट्स डू इट। आई थिंक मोहनीश का क्वेश्चन है। उसके पहले मोहनीश आपके क्वेश्चन को आंसर करें, उसके पहले हम जोश दी एआई, नाम बड़ा अच्छा है, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई होप, उनका क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि क्या जिनके पास टीम है उनके आइडिया को सिलेक्ट करने में हम प्रेफरेंस देंगे या फिर हम उनकी टीम बनाने में हेल्प करेंगे? हमारा जो इनिशियल स्क्रीनिंग है उसमें हम टीम पे, ऑब्वियसली हम टीम पे फोकस करते हैं, लेकिन वन मैन आर्मी को भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है, हमारे मेंटर्स ने आपसे बात की है, अगर उन्हें समझ में आता है कि यू अलोन कैन डू इट, लेटर ऑन आपको टीम भी लगेगी, वी कैन हेल्प यू फॉर्मिंग अ टीम। बट वो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया नहीं है कि अगर एक बंदे का आइडिया है तो हम उसे कम वेटेज दें, 3 लोगों ने मिलकर बनाया तो उसको ज्यादा वेटेज दें। वो फंडिंग के राउंड में होता है, बट हमारे इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड में हमने ऐसा कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ है। नाउ कमिंग टू मोहनीश, योर क्वेश्चन कि आने वाले दिनों में हमारे स्पीकर्स कौन है, तो जिन स्पीकर्स के लिए हम क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 नाम टेंटेटिव है, उनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा। जब वो कंफर्म हो जाएंगे सो बाय द लेट इवनिंग टुडे हम उनका नाम बता देंगे। लेकिन जो कंफर्म्ड स्पीकर्स हैं उनमें सबसे पहले है दीपाली रस्तोगी मैम, हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई में आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि एमएसएमई क्या हेल्प कर सकता है उसमें, हमें, इसलिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम को रिक्वेस्ट किया। तो एक सेशन उनका है जिसमें हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद में हमारा सेशन है मोहनदास पाई और सुरेश प्रभु जी का 25th of June को, जिसमें भी वो आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन करेंगे। देन वील हैव somebody from स्मार्ट सिटी सेंटर, Mr. Kapoor if he joins, and then Smriti Irani ji on the last day, जिसमें वो आप लोगों के साथ 1 घंटा सेशन लेंगी। और जो विनर्स हैं, जो टॉप 100, यस, थैंक यू सर, आई फॉरगॉट दैट नेम। उसी दिन हमारे साथ में कृष्ण गोपाला कृष्णन जी भी होंगे, जो भी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। इसके साथ हमारे साथ CLGF लंदन की टीम भी होगी, जो हमारे एक पार्टनर भी हैं, और आप लोगों को जो ग्रांट अमाउंट देना है उसमें वो भी एक फंडिंग एजेंसी है। दे विल आल्सो बी इंटरेक्टिंग विद यू। वाइस चांसलर सर रहेंगे, यस, RGPV के वाइस चांसलर सर, एंड अवर द UAD से भी रहेगा सर। जी सर, UAD कमिश्नर सर, UAD कमिश्नर भी रहेंगे, नरहरी सर रहेंगे हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के, और हमारे तो जबलपुर स्मार्ट सिटीज से के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जीआईसी के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। श्योर। राइट। आई थिंक हम लोग 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, फिर भी लोग अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ सबमिट करना है आपके क्वेश्चन। startuppathshala@gmail.com, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं। वहां से ही हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को लेगी, और अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो हम आपको लाइव प्रोग्राम में लेके आएंगे। ओके, अनुराग का क्वेश्चन है, काफी लोगों यस सर। I think we are the timer has rung and we are all done. And this Sunday we have not brought lot of panels ताकि थोड़ा आपको आराम दे। अगले 3 दिन थोड़े ज्यादा पैक्ड रहेंगे, और व्यूअर्स की डिमांड, कुछ अच्छे स्पीकर्स लाइनअप हमारे टेंटेटिव है, मंडे को होपफुली वो हो जाएंगे। तो कुछ हम इवनिंग सेशंस भी करेंगे। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग फ्यू सेलिब्रिटीज बिकॉज स्टार्टअप पाठशाला को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमको ईमेल्स और हमको काफी संदेश आ रहे हैं। तो होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड sports and some other celebrities to join in, just to give you a message of being positive, and the future depends upon you. CK sir. या मैं बस 2 क्वेश्चंस और आंसर कर दूंगा सर क्विकली, देन वील वाइंड इट अप। सबसे पहले जो अनुराग का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट में किन्हें अप्रोच करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट की हेल्प कर सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप, जैसे जहां तक मुझे पता है कि आप मध्य प्रदेश में कहीं से होंगे, तो आपके पास वो आइडिया ग्राम पंचायत के लिए है, नगर पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए, कलेक्ट्रेट के लिए, जिला पंचायत के लिए। यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपका आइडिया किस डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें ईमेल करें, आपको पूरा आइडिया का डिटेल देने का जरूरी नहीं है। आप एक लाइन में बताइए कि आपका कौन सा प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं। वी विल हेल्प यू कि आपको गवर्नमेंट में किन से बात करना चाहिए। वी कैन इनफैक्ट लाइन यू अप, हम वहां पे आपका मीटिंग भी सेट करा सकते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आप स्टार्टअप पाठशाला के स्टूडेंट हैं, आप जाके आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे, आप जाके उनसे मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि हम आपको गाइड कर देंगे, आप स्वयं जाके अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वीडियो को लेके, आपको हम सीधे लाइव लेके आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में। जब हमारे पास स्पीकर्स होंगे तो आप सिर्फ अपना फोन नंबर, अपना नाम, शहर का नाम और क्वेश्चन हमें भेजिए। अगर वो क्वेश्चन ठीक होगा, वी विल कॉन्टेक्ट यू। आपको वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी भेजना चाहें तो हम आपको रोक नहीं सकते, आप भेज सकते हैं। तो सर एक जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, हमारी क्विज़ेस में पार्टिसिपेट किया है, और उन सभी के लिए हम 26 को ग्रेजुएशन सेरेमनी या उनको एक सर्टिफिकेट भी आपके मेल तक पहुंचाएंगे। आपके ईमेल आईडीज जो रजिस्टर्ड हैं उन ईमेल आईडीज पे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जितनी क्विज़ेस आपके उसमें डली हैं, प्लीज जो मिस कर गए हैं वो बैक में भी जाके सारी क्विज़ेस के आंसर करें, और दैट विल एटलीस्ट गिव यू समथिंग एज अ रिमेम्बरेंस कि इस 1 महीने की स्टार्टअप पाठशाला को आप ने अटेंड किया, और हर क्विज उसके सेशन से रिलेटेड है। तो इन केस आपके यहाँ पावर फेलियर या किसी कारण से आप मिस कर गए, तो वो सेशन अभी भी आप फेसबुक में JIC YI भोपाल यूथ मास्टर्स और स्टार्टअप पाठशाला के यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप उनको देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ 25 को और 26 को आप सभी 12,000 लोग अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को बताएंगे। एंड आपका दिन है, क्योंकि स्टार्टअप पाठशाला आप ही की पाठशाला है। हम लोग को तो थोड़ी देर के लिए बुलाया जाता है, बट डेफिनेटली 26 को ये खत्म नहीं होगी। हम इसको किसी और फॉर्म में आपके बीच लेके आएंगे। आप किस फॉर्म में लाना चाहते हैं उसका भी आप फीडबैक देना चाहेंगे तो CK सर वी कैन टेक दैट फीडबैक ऑल्सो। बिल्कुल हम उस पर बात कर सकते हैं। और सर एक मोनिश का फिर से क्वेश्चन है। मोनिश के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। वन ऑफ आवर प्रोफेसर हैज ऑलवेज टोल्ड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस होंगे, जितनी आपकी क्यूरियोसिटी होगी, उतना ज्यादा आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। टॉपिक हमारे पास जिस लेवल के स्पीकर है वो टॉपिक से बंधे हुए नहीं है। अगर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सामने होता है, हम उन्हें एक टॉपिक से नहीं बांध सकते। आपके पास स्टार्टअप से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, किसी भी डोमेन का प्रश्न हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इतने बड़े स्पीकर्स को हम ये नहीं बोल सकते कि आपको सिर्फ स्टार्टअप फंडिंग पे बात करनी है, सिर्फ हमें पैसे कहाँ से मिले, हमें बिजनेस कहाँ से मिले। हम उनको टॉपिक से नहीं बांध सकते।
उनके डिग्निटी और उनके नॉलेज को रिस्पेक्ट करते हुए वी लीव दैट ओपन। आप स्टार्टअप से संबंधित कोई भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मोहनीश जी, ये समझिए कि आप एक एंकर हैं, आपके सामने वो स्पीकर है, आप उससे क्या एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जो 12,000 बच्चों के लिए वो प्रश्न होगा? तो आपको अपने आप एक मतलब स्पेसिफिक ना होकर उसको जनरलाइज पूछेंगे तो वो इम्पैक्टफुल होगा। वो मे बी दे आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट, बट वो क्वेश्चन हो सकता है उनके मन में एक क्वेश्चन पैदा करेगा जो युवाओं के लिए पॉलिसी बनाने वाले। हमें से वे सेलिब्रिटी लाके उसको एक ग्लैम से नहीं खत्म करना है। एक मौका यह है कि हम यूथ की आवाज उन तक भी पहुंचाएं, और हमने उसको रिक्वेस्ट किया जो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये हाँ, हम बच्चों को सुनना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मोहनीश जी, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं वेट करूंगा आपके क्वेश्चंस का। एंड आई थिंक वी आर ऑल डन। सीके सर, फाइनल योर्स। वी कैन हम अपने स्पीकर से वो एक वर्ड ऑफ एडवाइस बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक सर तो आज चले गए, उनका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, बट जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी आज के सेशन से। एक कि आपको अपना एक दोस्त होना चाहिए, एक को फाउंडर होना चाहिए, एक फ्रेंड जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकें। दूसरी ट्रांसपेरेंसी, जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट होंगे अपने पार्टनर से, अपने इन्वेस्टर से, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको कम होगा। So these very important and I think चारी सर आज आप अभी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने हमें आप आने के लिए सहमत हुए, और आपके जो इनपुट्स थे, आपके जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, दैट वाज सो वैल्यूएबल। एंड फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ चारी सर स्टार्टअप को पाठशाला आगे भी अप्रोच करेंगे हमारी स्टार्टअप पाठशाला, और बच्चों के आइडियाज को गवर्नमेंट तक ले जाने में सर हैज अ वेरी हाई dignified role in the government. So we'll definitely be in touch and take the blessings of Chari sir. Thank you, CK sir, for bringing Chari sir and taking forward. All right, thank you sir for turning up. Thank you everyone. Please take good care of yourself. आप लोगों को आज के सेशन का क्विज का लिंक शाम तक फेसबुक में अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड वी विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज सर। हैव अ नाइस डे। Thanks. बाय Bye-bye. बाय।